न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के रायपुर में। और रायपुर में आज यहाँ पहुँचने की वजह ये है कि एक अननेचुरल डेथ कहा जाए, एक तरह से कहा जाए, क्या है कि सुसाइड है कि मर्डर है हम नहीं बता सकते हैं। एक खबर आई है जिसको लेकर हम उसके तथ्य को जानने के लिए हम उस गाँव में पहुँचे हैं और उस गाँव के लोगों से बात करेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे हम जिस जगह पे खड़े हैं ये रायपुर आदिवासी टोला है और आदिवासी टोले में एक व्यक्ति है जिसका नाम है पलटू उराव नाम है, पिता का नाम है नेपाल उराव। ये पलटू उराव का जिसका जो उम्र है वो 26 साल बताया, 26-27 साल बताया जा रहा है, जिसको जो है एक पेड़ के पास बंधा हुआ पाया गया और उसको जब इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाया जा रहा था या पुलिस के हवाला किया, उसी दरमियान में उसकी मौत हो जाती है। क्या सच्चाई है हम लोगों को नहीं पता, ये हम आपको ऐसे ऑफिशियली हम आपको ये सारे बात बता रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इसी गांव का रहने वाला वो शख्स जो है जिसका नाम जो है पलटू उराव नाम है, अल्टू उराव, माफ़ कीजिएगा, अल्टू उराव नाम है, वो शख्स की जो है डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया है, लेकिन हम उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। ये उनकी माँ है, हम सीधे तौर पर उनके बात करने चाहेंगे। আপনার যে ছেলে আছে অল্টু ওরা কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে রিস্তি বিয়ে হয়েছিল, হ্যাঁ আনেনি মেয়েটাকে। বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ কবে? এই তো ফাগুন মাসে নাকি, আচ্ছা ফাগুন মাসে। হ্যাঁ আর বিয়ে হয়নি, আমি বলছি আনবো আনবো বলে আনতে দিবে না, বলে অনুষ্ঠান দিবে বলে ওর মা বলে, আচ্ছা। আর অনুষ্ঠান দিল না। তো আজকে আজকে তোমার ছেলে কোথা পাওয়া গেছে? কোথায়? হসপিটালে আছে। হসপিটালে আছে? হ্যাঁ। কি মারা গেছে? কি মারা গেছে তো। কবে শুনলেন আপনি এটা? আজকে। আজকে। আপনার নাম কি হলো? লোবো। सीधे ये उनकी माँ है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी बात वो नहीं बता पा रही है। बहुत दुखद है, बहुत सदमे में है। हम सीधे तौर पर उनके भाई है, उनके रिलेटिव हैं, हम उनसे बात करेंगे। কি হয়েছে দাদা আমরা জানতে চাচ্ছি আগে কি ঘটনাটা হয়েছে। আমার দাদা ছিল তো মেয়েটার বাড়িতে থাকতো। কি নাম তো আপনার দাদা? উল্টু উরাও। হ্যাঁ ঠিক। তো মেয়েটাই বলতে পারবে যে কে কেমন করে মারা গেল, কেমন করে মানে মার্ডার কেসে মারা গেছে আর কি। ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। মেরে ফেলা হয়েছে? হ্যাঁ। তো ওর যারা মেরেছে ওদেরকে যেন পুরা শাস্তি দেওয়া হয়। যারা আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে ওর তোমার যে দাদা হবে ওর 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 কোথায় আজকে পাওয়া গেল? ও কি হারিয়ে গিয়েছিল, কিছু হয়েছে? কাজে গেছিল, দিয়ে বেলে রাস্তায় কোথায় না কোথায় পাওয়া গেল, আমি সঠিক জানি না। শান্তিনগরে পাওয়া গেল, তো ওখান থেকে বেলে পাওয়া গেল না কি মারা গেছে নাকি ওখান থেকেই। এখনো মানে আপনারা ওই যে মারা গেছে ও আপনার কি হবে? আমার পিসির ছেলে হতো, আমার দাদা। ওই যে আপনি বলছেন একটা কোনো মহিলার কথা বলছেন, তো ওই মহিলাটা কি ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ বিয়ে হয়েছিল, কোর্ট ম্যারেজ হয়েছিল। কোর্ট ম্যারেজ হয়েছিল। তো ওই কি ও নিজের বাড়িতে থাকেনি আপনার দাদা? ওইখানে থাকতো, এই মেয়েটার বাড়িতে, শ্বশুর বাড়িতে। শ্বশুর বাড়িতে থাকছিল। তো মানে এই বিয়েটা যে হয়েছিল কত দিন আগে হয়েছিল? অনুমানিক অনুমানিক হয়ে যাবে 5 মাস। 5 মাস? হ্যাঁ 5 মাস আগে মানে ওর বিয়ে হয়েছিল। তারপরে ওর বউকে নিয়ে বাড়িতে আসেনি কি? আসেনি, ওখানেই থাকতো। তো আজকে ও মারা গেছে, আপনারা বলতে পারেন কিভাবে মারা গেল? কিছু জানা আছে আপনাদেরকে? আমার জানা আছে ওই মেয়েটাই বলতে পারবে সব কিছু। হ্যাঁ সব বলতে পারবে, কে ওই মেয়েটাই মারাইছে আমার আইডিয়া। আপনি বলছেন ওর উপর একটা আরোপ লাগাচ্ছেন মেয়েটাই মারেছে? হ্যাঁ ও বলতে পারবে, ওকে সরকার প্রশাসন ওকে করুক, জিজ্ঞাসা করুক কে মারেছে। তো আপনি ওর যে মারা গেছে ওর পুরো নামটা কি? আমার দাদা পল্টু উরাও। অল্টু উরাও। আপনার দাদা হবে? हाँ এই গ্রামে ওর থাকলো। हाँ। तो देखिए ये जो अल्टू राव जिसकी डेथ हुई है उसके गांव में हम खड़े हैं और उसकी ये भाई है। उनका साफ कहना है कि आज से 5 महीना पहले उसकी शादी हुई थी इसी गांव के एक लड़की से, लेकिन वो अपनी जो वाइफ है उसको लेकर अपने घर नहीं आया था बल्कि उस लड़की के यहाँ ही रह रहा था। और आज जो है उसकी एक तरह से कहिए कि एक लाश जो है एक तरह से अवस्था हालत में जो है पाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जांचबीन कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन घर वालों का आरोप यह है, घर वालों का खास करके उनके भाई जो हमारे से बातचीत कर रहे थे उनका ये आरोप है कि हमारे भाई ने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी किसी ने मर्डर किया और साफ तौर पर उन्होंने उस लड़की पर इसका आरोप लगाया है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये पूरा गाँव है, पूरे गाँव के लोग जो है
पूरे सदमे में हैं। और ख़ास करके अगर हम बात करें, ये पूरा आदिवासी टोला है। आज इस आदिवासी टोला में जो है पूरे लोग सदमे में हैं, दुखित हैं कि एक व्यक्ति की जो है यहाँ पे जो है मौत ऐसे हालत में, बल्कि घर पे नहीं हुई, खेत में किसी पेड़ के पास उसकी लाश को पाया गया। इस वक्त यहाँ पे जो है कई जनप्रतिनिधि इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ खड़े हैं। इस वक्त धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान हैं नूरुल इस्लाम साहब, वो यहाँ आए। नूरुल इस्लाम साहब, हम जानना चाहते हैं क्या घटना है, आप यहाँ के प्रधान हैं। देखिए, ये तो हम लोग का तकरीबन आज सुबह 9 बजे के करीब हम लोगों का जो मेंबर है यहाँ का दुलाल मीन्स, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि उसके ही गांव के एक लड़का को जो है शांति नगर में वो क्या ड्यूटी करने के लिए जा रहा था। शांति नगर कोई काम कर रहा था, वो मजदूरी कर रहा था। वो उसके दौरान उन्होंने हमको जो बताया, उन्होंने बताया कि वो वहाँ जो खेती कर रहा है, परवल के खेत का मामले आया कि वो परवल तोड़ने के लिए गया था। उसी के दौरान जो है वहाँ का चासी लोग जो है उसको पकड़ करके पेड़ में बांध करके मारा है, पीटा है। उसके बाद जो है जब वो आधमरा हो गया तो पांजीपरा फांड़ी को जो है इन्फॉर्म किया। पांजीपरा फांड़ी आकर के उसको जो रिकवरी करके ले जा करके इस्लामपुर जो है अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। उसके बाद उसका परिजन को कुछ पता भी नहीं, लड़का का जिसके साथ वो घटना हुआ है। वो लोग सुबह जब खोजाखोजी किया, नहीं पता चला, तब उस लोग किसी के माध्यम से पता चला कि उनको जो है इस्लामपुर अस्पताल में जो उसको भर्ती कर दिया गया है। उसका परिजन जो वहाँ जाकर पहुँच के देखता है कि उसका डेथ हो गया है। बड़ी दुख की बात है। और अभी जो ये सारा दिन जो अभी गुजरा उसमें से कोई तथ्य सामने आ रहा है। उसके यहाँ गांव में जो हम लोग आए हैं उसके बाद जो पता चला हम लोगों को कि मामला वो परवल वाला नहीं है, जो ये होता है सब्जी बनाने का जो परवल होता है, मामला वो नहीं है। मामला है एक लड़की का जो उनके साथ विवाह तकरीबन आप लोग बताएं कि 6 महीना पहले ही जो उसके साथ शादी हुआ था और उसी लड़की के घर में वो रह रहा था, वो लड़का तो शायद उसके साथ कोई और दूसरे लड़के का साथ उस लड़की का कोई अफेयर था। उसी के कारण जो है इन लोग का कहना है गांव वालों का कि अफेयर के कारण जो है वो दूसरे लड़के से उसको मरवा दिया है। अभी जो पुलिस भी आई है, कहीं उसका जो कुछ सामान है वो भी पाया गया, पुलिस लेके गई, ऐसा क्या है? हाँ, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले हम लोग जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, यहाँ पे आए थे। उसके बाद हम लोग जब घर लौटे तो कुछ आदमी वहाँ का लोकली यहाँ का आदमी जो फ़ोन करके बताया, हम लोग का जो अंचल का सिविक पुलिस जो है, जो विलेज पुलिस है, उनको फ़ोन करके बताया कि जो लड़का जो मरा है उनका कुछ सामान जो है, उसका पैंट वगैरह, साइकिल और उसका जो पर्स था, पर्स में उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड और जो उसका डॉक्यूमेंट्स था उसमें मौजूद था। कुछ रुपये भी थे उसमें। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी यहाँ का लोकल फ़ोन करके बताया, तो हम लोगों में ने गया वहाँ पर, प्रशासन भी वहाँ आई थी, जा करके देखा कि नहीं सही बात है। ये कहाँ मिला? ये तकरीबन इस गांव से 1 किलोमीटर के करीब होगा। और जो जहां लड़का का ये हुआ है, घटना हुआ है, वो यहाँ से तकरीबन जो है 4 से 5 किलोमीटर शांति नगर में हुआ है घटना। तो घटना शांति नगर में होता है, उसका सामान ये घर से 1 किलोमीटर दूरी में। जी, वो बिल्कुल एकदम फाका जगह है। वो धान के खेत है, धान के खेत में जो है मिला है। अब ये प्रधान साहब, ये आप क्या चाहते हैं? इस तरह की जो घटना होती है, प्रशासन से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के मामलों को लेकर? देखिए, इसमें सुबह से प्रशासन की तरफ से हम देखें, जो सुबह से देख रहे हैं कि प्रशासन भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वो लोग भी पूरा मेहनत ये कर रहे हैं, इसमें जुटे हुए हैं कि सही जो उसका दोषी है, उसको दोषी को जो सही सज़ा, उसका जो कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिले। वो लोग भी जो है हर मुमकिन में लगा हुआ है। आपका ये क्या नाम बोलते हैं, ग्वालपोखर ये हो, ऐसी हो, या आपका जो है पांजीपरा का फाड़ी का ये हो, वो सारे लोग जो हैं पूरे जुड़े हुए हैं इस मामले को सॉल्व करने के लिए। और सही जो दोषी है उस दोषी को हम भी चाहेंगे, मेरी भी धर्मपुर 2 अंचल की तरफ से ये मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं नूरुल इस्लाम साहब। उनको साफ तौर पर जिस तरह से पूरी घटनाक्रम के बारे में वो बता रहे कि उस शख्स का जो डेड बॉडी है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शांति नगर के पास मिलता है, और उसके जो सामान है, चाहे साइकिल हो, पर्स हो, कपड़े हैं, वो उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी मिलता है। और कहीं ना कहीं उनकी जो शादी होती है जिस लड़की के साथ, उस लड़की का भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही। लेकिन हालांकि पूरे तथ्य को जो है पुलिस जांच-पीच कर रही है। यहाँ पे हम और भी यहाँ के लोगों से बात करें, कई जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के अंचल प्रेसिडेंट हैं अब्दुल नासिर साहब। अब्दुल नासिर साहब, ये बताइए, आप भी इस पूरे घटने के पर नज़र बनाए हुए हैं, क्या सच्चाई है और क्या लगता है जो लोग इस तरह के घटने को अंजाम देते हैं उसको क्या होना चाहिए? देखिए, सुबह हम लोग खबर मिला हम लोगों को, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग का मेंबर है
दुलाल मिंज, उनके जरिए खबर मिला कि उनके भतीजे का मर्डर हो गया है। कहाँ मर्डर हुआ है, कैसे मर्डर हुआ है, कुछ हम लोग को इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन हुआ कि पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के एरिया में उनके भतीजा को किसी गाछ में बंधा हुआ था। रात में पुलिस वहाँ से रिकवरी करके इस्लामपुर हॉस्पिटल भेजा, लेकिन आज सुबह उसका डेथ हो गया। अब है कि क्राइम करने वाला बहुत ही चालाक किस्म का इंसान रहा होगा, क्योंकि घटना कहीं और करता है, बांध के कहीं और रखता है। तो इसका मतलब है कि घटना करने वाला लोगों को माइंड के कन्वर्ट करने के लिए क्राइम उनके घर से 400 मीटर दूर किया है। जैसा अभी 1 घंटा पहले हम लोग गए थे, स्पॉट में गए थे, तो देखा कि उनका साइकिल गिरा हुआ, उनका पैंट गिरा हुआ, शर्ट गिरा हुआ है, पर्स गिरा हुआ है, उनका कुछ पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब गिरा हुआ है। उनके घर से 400 से 500 मीटर दूर पर वो सारा सामान मिला, लेकिन बॉडी को यहाँ से 6 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर पांजीपाड़ा अंचल के एक सुनसान जगह में एक पेड़ से बंधा हुआ मिला, और पुलिस उसको उठा के 90% मुर्दा हालत में उठा के हॉस्पिटल भेजा, जहाँ उसका डेथ हो गया। तो अब है कि हम प्रशासन से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि क्राइम करने वाला जितना चालाक हो, प्रशासन अगर ईमानदारी से चाहे, प्रशासन अगर ईमानदारी से उसको निकालने के लिए चाहे कि क्राइम कौन किया है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। और अभी अभी इस गांव में आके पता चला कि उनकी शादी हुई थी 5-6 महीना पहले, तो कुछ लिंक उसके वाइफ के जरिया से भी आ रहा है कि हो सकता है कि वाइफ के जरिया कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, लेकिन ये पुलिस की काम है, पुलिस की जिम्मेदारी वो सारे तथ्य को निकाले। लेकिन साथ ही साथ अभी जब यहाँ पर आया उसके आधा घंटा पहले कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने उन लोगों के जरिए पता चला कि सुबह कोई आदमी जो क्रिमिनल रहा होगा एक रिवॉल्वर के साथ और हथियार के साथ इस गांव में आया था। और ये भी पता चला, यहाँ की औरतों से बात करके पता चला कि हो सकता है कि वो इस लड़की को उठाने के लिए आया होगा, लेकिन यहाँ की औरतें चालाक थी, उस लड़की को कहीं छुपा दिया होगा और क्रिमिनल यहाँ से भाग गया है। तो प्रशासन से मेरा पुरजोर अपील है कि जो भी क्रिमिनल है, चाहे वो इस गांव का हो चाहे पड़ोस के गांव का हो, आप ईमानदारी से पूरा तथ्य उठाकर उस क्रिमिनल को इमीडिएट आप लोग गिरफ्तार करें, ताकि हम लोग भी तसफ़ी बख्श लोगों को मुतमईन होकर ये जवाब दे पाएँ कि नहीं, हम लोग क्रिमिनल मुक्त इस अंचल को करना चाहते हैं। उसमें हमारे जो प्रशासन का अहम भूमिका है, हम चाहेंगे कि प्रशासन अपना अहम भूमिका निभाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के अंचल प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और दोनों जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ के प्रधान हो चाहे अंचल प्रेसिडेंट हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम की जानकारी अब तक आई है और इन लोगों से बातचीत करके जो बातें सामने आ रही है, उनमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी इस घटने को अंजाम दिया है, जिस भी क्रिमिनल ने इस क्राइम को अंजाम दिया है, जिस व्यक्ति ने इस क्राइम को अंजाम दिया है, उस क्राइम बड़ी चालाकी से अंजाम दिया है। उसके सामान को एक जगह गिराता है, यहाँ से फिर काफ़ी दूर में उसको एक पेड़ से बांध देता है, और बताया जाता है कि 90% डेथ हालत में वो पाया जाता है। पुलिस उसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करती है, फिर वहाँ पे वो डॉक्टर जब इलाज करते हैं उस क्रम में उसकी डेथ हो जाती है, या फिर डेथ कहा जाए, ये क्या मामला है डेथ का, तो ये तो डॉक्टर और पुलिस ही बता सकेंगे। लेकिन अब तक की जो अपडेट है, उनको अभी तक डेथ घोषित किया गया, उस पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से ऐसे व्यक्तियों का इसमें शामिल होने की बात आ रही है, जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन लोगों का डिमांड है, गांव वालों का भी डिमांड है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस पूरे इलाके को, इस पूरे अंचल को जो है क्रिमिनलों से मुक्त किया जाए, लोगों को प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर एक भरोसा कायम हो। इस पूरे घटनाक्रम में आगे जो भी अपडेट हमारे पास आएगा, हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।